Good morning, ma'am. Good morning, Faiz. Good morning, ma'am. Good morning, Akansha. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Dhruv. Good morning, Abhin. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आयुष। बेटा आप क्लासेस आपने पिछले हफ्ते इस वीक में आपने क्लासेस ही नहीं करी हैं आयुष, ऐसा क्यों बेटा? आयुष, यस मैम। आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं इस वीक, ऐसा क्यों? मैम कर रहा हूँ अब से मैं। नहीं, आज तो आप आए हो क्लास में, बट पिछला पूरा हफ्ता, ये जो वीक गया है, इसमें आपने क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं। दैट आई एम आस्किंग यू मैम व्हाई। मैंने आपको बताया था उसका रीजन। आपने बताया था मेरे को, शायद यस दिमाग मैम, ऑन द फोन कॉल। शायद स्लिप कर गया होगा बेटा। इफ यू कुड राइट इट अगेन ऑन माय पर्सनल नंबर। ओके मैम। महक, गुड मॉर्निंग अक्षदा। महक यादव, Yes, ma'am. बेटा yesterday I called up 6 times on your number that is with me. You did not Good even morning, ma'am. Good morning. You did not even bother to call back. That what was the reason why I called you? Ma'am, I haven't checked. You haven't checked. Fine. Once you are done with your classes, 2 o'clock, I would like you to call me back. Right? I want to talk to you. Ah, Yes, ma'am. don't forget, okay? ठीक है. Then Priyanshu. Morning, ma'am. Good morning, Ramsha. Priyanshu, Yes, ma'am. how are you feeling now? Ma'am, fine, ma'am. Ma'am, but I'm still in Lucknow, ma'am. I'm taking medicines also. Huh? Yes, Priyanshu. Ma'am, feeling better now. Okay. So will you be taking your classes regularly? Yes, ma'am. Fine. Fine. I told, I want the screenshot where you have specified about your illness in the class group, right? Good morning, Okay, ma'am. ma'am. Good morning, beta. Kindly send me the screenshot, beta. Okay? Sure, ma'am. हाँ. ठीक है. I think yesterday we started with a new chapter. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। So you want to go with that, or anything else you want to do? Something else? Ma'am, we want to go with that only. With political parties only, no? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. यस मैम। Yes, So ma'am. let me share the screen with you for the PPT, okay? मत खोल दो. Let everyone come inside. मुझे गुड मॉर्निंग करना है. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, beta. How are you? Anamata, is she your sister or brother? Anamata, Yes, ma'am. your sister or brother? Ma'am, she's my sister. Ma'am, by mistake. Huh?
No, no, it's not. It's Ma'am, okay. she's my sister. She's your sister. Fine, fine, fine. It's okay. Mm. I'm not getting that. Fine. Ma'am, have you taken the attendance? नहीं बेटा अभी ले रहे हैं हम. Okay, keep your books ready with you, and here I am taking the attendance. Right? Ma'am, Which subject? Civics. We are doing civics. Okay. हाँ. Anya is there in the class? Okay. Abhinav Pandey, Present, ma'am. Agrim Vashisht, Present, ma'am. Akansha Yadav, present, ma'am. Present, ma'am. Aksada, Anamta, ma'am. Ayush Singh. Present, ma'am. Okay. Present, ma'am. Okay. Bhumika Patel. Chirag is not there in the class. Deep Shikha. Devan Singh Patel. Present, ma'am. Dhananjay Present, Singh. ma'am. Then Dhruv. Arshit Kumar. Ma'am, Dhruv present. Dhruv is present. Kapil Patel. Kapil Patel. Kavya Agarwal. Kavya Agarwal. Khushbu Singh. Present, ma'am. Present, ma'am. Khushbu Singh is present. Yes, ma'am. And Kunal is also present. मैम ने जॉयस्टिक का पूछा थे मैम ने हाँ? बोला No, Kunal is not present. Okay. Kunal is not present. Fine. Mehak. Yes, ma'am. Malay. Present, ma'am. Faiz. Present, ma'am. Fine. Then Nikhil Nehra. Present, ma'am. Priyanshu. Present, ma'am. Ramsha. Sanya. Shreya. Present, ma'am. Swali. Present, ma'am. Vishesh Agarwal. Vivan Patel. Not there. Yadvendra Kumar. Can you see? Ma'am, Deepshika present. Mohammed Hasim present. Mohammed Haseen present. I have marked you present. Ma'am, Deepshika present. Okay, Deepshika is present. Ma'am, have you marked mine? बेटा धनंजय नाम लिया था हमने आपका, आपको हमने मार्क कर दिया है प्रेजेंट. Okay, ma'am. Okay, then विशेष, कपिल ने अटेंडेंस डाला है, रमशा, प्रियांशु. लेट मी जस्ट चेक. हाँ, अग्रिमा, अभिनव, ठीक है. विवान इज नॉट एबल टू ज्वाइन ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज. चलो ठीक है. Meg, just fine. Taken your books? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Yes, Yes, Ma'am. ma'am. Do I need to share the screen with you all? No, ma'am. Okay. So first of all, what we are going to do is, ma'am, your voice is lagging.
My voice is lagging. Now it is okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Ma'am, what is the syllabus for UT? what beta Ayush? Ma'am, what is the syllabus for UT test? You will get to know. Don't worry. UTs अभी बहुत time है UTs में है ना. अभी रुक जाओ. हाँ. Okay. Yesterday I told you about the political parties. See, what is a political party? A political party is a political organization of people who come together to contest election and control the political powers, right? Right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, when we talk of the political parties, there are three basic components of a political party. The first component is the leader. The second are the active members, those who are part of it. Vivan, good morning. Vivan Patel, are you there? Yes. Yes, ma'am. Okay. Fine. Now, three components of the political party. First, the leaders that are part of that political party. Then the active members, those who are there. The members, those who work for the party. And third component of the political party are the followers, those people who follow that particular party. All these three, they make up the components of a political party. This part is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the role of Yes, the ma'am. What is the role of the leader in this political party? Can anybody tell? Agrim? Ma'am, he leads the political party. He leads the party members, right? Right? And what is the role of the active members in the political party? Ma'am, they work for the party. What kind of work do they do for the party? Ma'am, like supporting the party. Supporting the party. Yes. Ma'am, guiding the members. Guiding the members, right? Then what else? Ma'am, increasing the member. Ma'am, taking votes. Right. Ensuring votes. Then how do they ensure votes? They go to the public, they hold public meetings, and they speak about the policies of the party. They speak about what the party has in store for them if the party comes to power, right? Right? Yes, ma'am. They Yes, actually ma'am. Yes, ma'am. they actually work for the public, for making a good public opinion for the political party they belonged to, right? Yes, ma'am. Right, class? Okay, Yes, fine. ma'am. Then what do the followers do? Ma'am, they follow the party and give the vote. They follow. They follow the party, support the vote. Ma'am, they give the vote to the Ma'am, party. they elected the leaders. They elect the leaders, and moreover, these followers, those who are there, they somehow relate to the ideologies of the political party, and they make sure that in the elections they are in full support for that particular party to which they really agree, so that it comes to power, right? Yes, ma'am. Yes, Fine. ma'am. Okay. Haseen. Yes, ma'am. Can you tell how many national political parties we have in our country? 7. 7. Priyanshu, can you name those 7 political parties that we have in the country? Ma'am, INC, Indian National Congress, BJP, Bharatiya Janata Party, BSP, Bahujan Samaj Party, CPIM, ma'am, Communist Party of India, ma'am, what is this? Ma'am, Communist Party of India. Marxist. Ma'am, this what is written? Yes, ma'am, Marxist, and ma'am, Community Party. Yes, ma'am, Communist Party of India, National Congress Party, and this much only. And Trinamool Congress, TMC. Right? Okay, ma'am.
Fine. So otherwise, if Ma'am, I where it is written in the book? it is given in the book, beta. Ma'am, on which page number? अब ऐसे book I don't have right now with me, so I cannot tell you the page number, but we'll be doing Ma'am, it. page number 80. This, okay, page 80. This is just a recapitulation that we did yesterday. ये सारा चीज हमने कल पढ़ा था बेटा. ठीक है बेटा? Okay, ma'am. Okay. Now, once a political party is formed, what are the functions of the political parties? See, the basic function of a political party is the first and the foremost feature is that function is that it is supposed to contest elections by putting up their candidates, right? Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second thing, they frame the policies and programs to attract the general public. Like if you must have seen the election campaigns that go on, in these election campaigns, the party members, the party candidates, the party leaders who are there, what do? These people, they go to the public, they talk about the agenda, then the manifesto, if you remember, वो कहते हैं ना चुनाव प्रपत्र जो है ये लोग जो है जारी करते हैं. चुनाव प्रपत्र जो होता है वो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है. उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो सब चीजें लिख के देते हैं जनता को, लोगों को, जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वंस दे कम टू पावर. आई होप आई एम क्लियर. Yes, ma'am. Right. The third function is that they play decisive role in the law making process in the parliament. आपने देखा होगा ये जो हमारी जो रूलिंग पार्टी है इस समय, कौन सी रूलिंग पार्टी हमारी इस समय? बीजेपी. Yes, BJP is the ruling party. Ma'am, BJP. Yes, BJP. BJP. Can you tell me any two changes that this party has brought in its tenure, in the previous tenure when it was in power? Do you think that any major change it had brought? Yes, ma'am. Yes, Development of roads. Okay, Priyanshu. Ma'am, that Kashmir one, ma'am, making an independent. Very good. Development of electricity. Yes. बेटा देखो ये डेवलपमेंट तो हर गवर्नमेंट करती है, बिजली पानी सब चीजों का. बट मलय यू हैव स्ट्राइक द राइट पॉइंट. सी दिस गवर्नमेंट, हाँ, इन्होंने क्या करा था, कौन से आर्टिकल को एबॉलिश करा? 370. हाँ, Ma'am, Article 370 was abolished. Article 370 was abolished and Kashmir was made part of the country. अगर आपको पता हो, I don't know how many of you know this, जम्मू कश्मीर के जो लॉज थे, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अलग था पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से. वहां का फ्लैग अलग था. राइट? आर यू अवेयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो जब बीजेपी पावर में आई तो बीजेपी ने अपने पावर में आने के आई थिंक 2015 में अगस्त 2015 में इस बात को जो है पार्लियामेंट में डिस्कस करा और उन्होंने जो है पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने कहा कि हम 370 को अबॉलिश कर देंगे. एवरीबडी अग्रीड टू इट और अल्टीमेटली जो आपका 370 आर्टिकल जो कश्मीर पे हम चलाते थे, इम्पोज करते थे जम्मू कश्मीर पे, वो हटा दिया गया. और उसके हटाने की वजह से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के लॉज, वहां का फ्लैग, सब कुछ जो हमारे बाकी कंट्री में हम फॉलो कर रहे थे वही चीज हम वहां पे भी अब फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. और what another major change was brought there, Aksada? Yes, sir. और इसके अलावा क्या मेजर चेंज लाया गया वहां पर जम्मू कश्मीर में? Anybody in the class? Yes, Swali? Ma'am, every citizen got, ma'am, right to go there and purchase land over there, ma'am. And ma'am, earlier it was like that, ma'am, Kashmir people only have right to purchase land over there, ma'am. ये तो था ही था. इसके अलावा एक मेजर चेंज क्या आया वहां पे जम्मू कश्मीर में? क्या मेजर चेंज आया? मैम, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गई अब. वेरी गुड अग्रिम. जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी हो गई है. इट इज नो मोर अ स्टेट नाउ. और उसके साथ साथ और कौन सी एक यूनियन टेरिटरी बन के आई है? लद्दाख. मैम, लद्दाख. वेरी गुड धनंजय, लद्दाख.
लद्दाख। वेरी गुड क्लास। तो कह रहा है ये जो तीसरा पॉइंट है कि दे प्ले डिसिसिव रोल इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द पार्लियामेंट। इसमें जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उसके अंदर एक तो वो चेंजेस भी ला सकते हैं, प्लस अगर कुछ अमेंडमेंट करना होता है तो उस अमेंडमेंट को भी विद द ड्यू परमिशन इन द पार्लियामेंट वो इस चीज को करते हैं। ठीक है, ठीक है। आई होप दिस थर्ड मैम। ओके मैम। ठीक है। देन द फोर्थ फंक्शन ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट। जब भी इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, अपने कैंडिडेट्स को उतारती है चुनाव में, और जब जो भी कैंडिडेट चुनाव में जीता है और उन कैंडिडेट्स के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी जो है मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेके आती है वो पार्टी को जो है डिक्लेयर किया जाता है विनिंग पार्टी, और फिर वो पार्टी जो है वो सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट को चलाती है। वो पॉलिसीज बनाती है लोगों के लिए, किस तरीके से देश भर में किस तरीके के काम होंगे, क्या डेवलपमेंट पॉलिसीज वो अपनाएगी, ये सारी चीजें डिस्कस करी जाती हैं, ये सारी चीजों को डिसाइड किया जाता है वंस अ पॉलिटिकल पार्टी कम्स टू पावर। आई होप आई एम क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज, अब जो पार्टी जीत गई वो तो भाई सरकार बना लेती है, अब जो पार्टी हार गई वो क्या करती है भूमिका? ऑपोजिशन पार्टी। जो पार्टी जीत जाती है वो तो गवर्नमेंट बना लेती है, और जो पार्टी हार जाती है वो क्या करती है, उसका क्या रोल होता है भूमिका पटेल? आयुष यू वेट, भूमिका क्या रोल होता है उस पार्टी का जो हार जाती है बच्चे? दीपशिखा, दीपशिखा बेटा आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है हमको। यस आयुष आप बताओ बेटा। मैम दे मेक ऑपोजिशन पार्टी। वेरी गुड। जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है इलेक्शन में वो अपोजिशन पार्टी बनाती है, और अपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है जानते हैं? मैम दूसरी पार्टी को बदनाम करना, धनंजय कमियां निकालना दूसरी पार्टी की। Ma'am, to question the ruling government and to take out the mistakes which were made by the government. यस वेरी गुड असीम। ठीक है, धनंजय ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, अपोज करना। क्योंकि धनंजय ने देखा होगा न्यूज में क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो हमेशा रास्ते ढूंढती है कि किस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है उसको जो है डिफेम करा जाए, है ना धनंजय? यस मैम। वेरी गुड। बट हसीन योर पॉइंट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। धनंजय ने जो बताया वो भी ठीक ही है, एक तरीके से ऐसा ही होता है। दे ट्राई टू पुट द रूलिंग पार्टी डाउन बाय क्रिटिसाइजिंग देयर पॉलिसीज। अब वो क्या करती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो बहुत ही माइन्यूटली जो गवर्नमेंट की वर्किंग होती है उसको मॉनिटर करती है, और मॉनिटर करने के बाद वो जो भी लूप होल्स होते हैं उनकी वर्किंग में, उनकी पॉलिसीज में, या उनके जो भी वो प्रोग्राम्स जो हैं इनिशिएट करती हैं उनमें जो भी लूप होल्स होते हैं, जो भी वीक पॉइंट्स होते हैं उनको वो हाईलाइट करती है, या जो भी उस पर्टिकुलर पॉलिसी का जो भी ड्रॉबैक होता है, जो भी उसकी कमियां होती हैं उसको वो लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, एक पॉजिटिव वे में वो काम करती है जिससे कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी वर्किंग को बेटर कर सके। एम आई क्लियर? यस फाइन, नो डाउट्स। कहीं ना कहीं मोटिव ये भी होता है कि अगली बार वो अगर जो अपोजिशन पार्टी है अगर वो बहुत ज्यादा रूलिंग पार्टी की कमियां गिनाएगी या उनकी वर्किंग में जो है लूपहोल्स निकालेगी तो हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शंस में जो है लोग जो है कॉमन मैन जो है वो शायद उसी पार्टी को वोट ना करे, मे बी वो वोट आउट कर दे उसको, और जो अपोजिशन पार्टी है जिन्होंने हाईलाइट कर रहे हैं उन शॉर्ट कमिंग्स को वो उसको वोट कर दे और उनको पावर में लेके आ जाए। ठीक है, दिस इज द ओनली मोटिव। बट ये होता है कि whenever we talk of politics, whenever we talk of the government, और जब भी हम अपोजिशन की बात करते हैं हमारा जो सोल मोटिव होता है वो ये होता है, ओनली मोटिव इज टू एंश्योर कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो लोगों के हित में हो, उनके वेलफेयर के लिए हो, नॉट फॉर द एक्सप्लॉइटेशन बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन। राइट? यस मैम। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए वेरी गुड। अब दूसरी चीज,
जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और जो अपोजिशन पार्टीज होती है, उनका एक काम ये भी होता है टू शेप द पब्लिक ओपिनियन बाय रेजिंग एंड हाईलाइटिंग पब्लिक इश्यूज। कई बार क्या होता है, कुछ छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिनको की बहुत ज्यादा फोकस नहीं मिलता है या बहुत ज्यादा जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज या अपोजिशन पार्टीज या जो आपके ये जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, इनका काम ये भी होता है कि वो पब्लिक में जाके उन इश्यूज को जो है उठाए, उनके बारे में बात करे और लोगों को अवेयर करे उनसे। ठीक है, ताकि लोग जब अवेयर होंगे तभी तो वो ये जज कर पाएंगे कि एनालाइज कर पाएंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है या जो गवर्नमेंट जो इस सब जो भी गवर्नमेंट है वो कितना लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रही है, कितना उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है, कितना कंट्री को इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं वो जो भी काम कर रहे हैं उनका सोल मोटिव अपना बेनिफिट हो या अपने बारे में ही सोचना हो। ठीक है, यस मैम। ठीक है, इतने समझ में आए पॉइंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दूसरा Yes, Yes, सबसे आखिरी पॉइंट जिसको हम कहते हैं, और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि टू प्रोवाइड एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स थ्रू लोकल पार्टी लीडर्स। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इनिशिएट करी, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई क्या बोलते हैं योजना निकाली। ठीक है, अब भाई आम नागरिक जो है कि हमें सारी तो सरकार की पॉलिसीज के बारे में नहीं पता होगा, ना ही सारे की सारी स्कीम्स हमें पता होंगी कि भाई सरकार ने क्या चलाई है, पर वो हमें कैसे पता चलती है? कैन एनीबडी टेल? कपिल? मैम मैं टेल? वेट मैम मैं प्लीज रिपीट। एक मिनट रुको। प्लीज कपिल, रिपीट। कपिल पटेल, कपिल। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन। बेटा माय क्वेश्चन इज, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी योजनाएं बना, जो हमारी रूलिंग पार्टी जो भी योजनाएं बनाती हैं लोगों के लिए, वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाती हैं? व्हाट आर द वेज दैट आर अडॉप्टेड? चलो अच्छा, मलय बताओ बेटा। मैम बाय एडवर्टाइजमेंट। किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट? कमर्शियल एडवर्टाइजिंग? नो मैम बाय मैम बाय होल्डिंग्स, बैनर्स मैम, लाइक दैट मैम, रैलीज। हाँ, सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है इनको लोगों को अवेयर करा जाता है। फिर आपने देखा होगा टीवी में, अब जैसे आज की डेट में अगर कोरोना को अगर आप लेते हो तो कोरोना के क्या मतलब कोरोना से क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या किस तरीके से लोगों को अवेयर रहना चाहिए, आपने देखा होगा रेडियो, टीवी, सड़कें, मतलब जहां जहां पे भी आप जाओगे, जहां भी आपकी नजर पड़ेगी, चाहे वो टीवी देख रहे हो आप, चाहे आप रेडियो सुन रहे हो या मतलब ट्रांजिस्टर रेडियो या एफएम जो भी सुनते हो, उसमें आप देखोगे कि हर दूसरे या तीसरे गाने के बाद एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट आता है विच टेल्स यू हाउ टू बी सेफ फ्रॉम कोरोना, व्हाट ऑल मेजर्स मैम मेन थिंग इज मैम ऑन फोन कॉल्स। हाँ, फोन कॉल्स भी देखो। यस मैम, ऑन फोन कॉल। एग्जैक्टली। तो ये जो है ये जनरल अवेयरनेस इज स्प्रेड थ्रू द गवर्नमेंट। ये तो हो गया एक जनरल चीज। ठीक है, अब जैसे सरकार ने कोई स्कीम निकाली है, गरीबों के लिए घर बनाए, ठीक है, अब उस गरीबों के लिए जो घर बनाए हैं उसको कैसे पता चलेगा, उसके बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा? ये तो जो लोकल ऑफिसेज होते हैं ना, जैसे बरेली में बीजेपी के ऑफिसेज होंगे, देखे हैं आपने? यस मैम। हाँ, बरेली में जो बीजेपी, हाँ जो बीजेपी के जो जितने भी विधायक हैं या एमएलए या एमपीज जो भी हैं, उनके ऑफिसेज हैं यहाँ पे, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके अंदर जो एक्टिव मेंबर्स हैं या जो फॉलोवर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जगह जगह जाके अलग अलग एरियाज में जाके उनको अवेयर करते हैं कि भाई सरकार ने ये योजना निकाली है और इस योजना का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर जो भी मतलब उसका जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, अगर आप उस क्राइटेरिया को बिलोंग करते हो या उस क्राइटेरिया का पार्ट हो या उस क्राइटेरिया को, उन कंडीशंस को फुलफिल करते हो, तो आप उसका जो है बेनिफिट उठा सकते हो। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों तक ये लोग पहुंचाते हैं, जो आपके एक्टिव मेंबर्स होते हैं या जो लोकल पार्टी लीडर्स होते हैं, वो इन चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं, जनरल पब्लिक तक पहुंचाते हैं, सो दैट दे कैन टेक मैक्सिमम एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ द schemes that are launched by the government. Am I clear? Yes ma'am. ठीक है। Yes ma'am. This was all Yes ma'am. Yes ma'am. this was all about the functions of the political parties. ठीक है आयुष, any doubts? No ma'am.
चलिए, अब हमने कल एक चीज डिस्कस करी थी कि क्या हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर काम कर सकते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट Yes. टॉपिक है वो यही कहता है, नेसेसिटी, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कहता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं तो क्या होता है कि जो हर कैंडिडेट है वो इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, ठीक है, वो कोई भी प्रोमिसेस नहीं करेगा, ठीक, गवर्नमेंट की जो यूटिलिटी है वो एकदम अनसर्टेन हो जाएगी, क्योंकि भाई सरकार बन तो गई पर कोई प्रोमिसेस ही नहीं करे गए हैं, तो कहाँ से जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे या आंसरेबल रहेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कंट्री को चलाने के लिए तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मैम इससे डिक्टेटरशिप भी आ सकती है। नहीं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है, कोई भी, हम जैसे अग्रिम कहता है कि भाई मैं जिस घर में रहता हूँ मैं उस घर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे अगल बगल के जो घर है उनमें कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, होते रहे, आई एम नॉट आंसरेबल टू दैट, ठीक है, मैं अपने एरिया को साफ रखूंगा, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। अक्षता बोलेगी मैं जहाँ रह रही हूँ मैं उस एरिया से कन्फाइंड रहूंगी, ठीक है, दीपशिखा बोलेगी मैं अपने एरिया से कन्फाइंड रहूंगी। तो जब सब अपने अपने एरिया से कन्फाइंड रहेंगे तो चलो एक रीजन का तो चलो उद्धार हो गया, उसका जो है जो भी मतलब उससे वहां के जो इश्यूज हैं, आप क्योंकि हर इंडिविजुअल कह रहा है कि मैं अपने अपने एरिया से कंसर्न हूं तो मैं अपने एरिया को देख लूंगा, तो लोग जब अपने एरियाज को देख लेंगे तो कंट्री को कौन देखेगा, भाई देश को भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर हम कहते हैं कि हम खुद ही से अपने अपने एरियाज को संभाल लेंगे तो कंट्री को कौन संभालेगा, कौन ये इनिशिएटिव लेगा कि भाई ठीक है हम कंट्री के डेवलपमेंट को देखेंगे, कोई भी तो नहीं होगा इस चीज के लिए, होगा क्या प्रियांशु? प्रियांशु नो मैम, वही तो कौन ठीक है, नो मैम, मैम अभी भी कौन सा हो रहा है मैम? अरे तो पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग दीस डेज। नहीं बेटा, देखो आप ऐसे नहीं कह सकते हो, देयर आर सेवरल कंडीशंस दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू। आप ये कहो, अगर आप अच्छा देखो, सीधा सा एक सिंपल सा एग्जांपल है पढ़ाई को लेके, बहुत सारे पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, बट डू दे रियली नो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? क्या उन्हें ये पता है कि उनका बच्चा क्लासेस कितनी कर रहा है कितनी नहीं कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो सुबह बैठ जाता है मोबाइल और लैपटॉप जो भी लेके एंड एक्चुअली नॉट डूइंग द क्लासेस बट डूइंग समथिंग एल्स? डू दे कीप अ चेक ऑन इट? नहीं रखते हैं ना। तो ठीक है, ऐसे ही आप गवर्नमेंट को नहीं कर सकते बेटा, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू, ठीक है। सरकार को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट तो चलो फिर भी अपने स्टेट के लिए कन्फाइंड रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल अपने तक कन्फाइंड नहीं होती है, उसको पूरे देश का हित देखना होता है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू लुक इनटू दैट। उसको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी प्रॉब्लम्स अब कोई पर्टिकुलर स्टेट फेस कर रहा है तो कैसे उस स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प किया जाए इन कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है, टू कोप अप विद द क्राइसिस दैट द स्टेट इज फेसिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई क्राइसिस फेस करती है तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी आती है कि हाँ ठीक है हम हेल्प कर रहे हैं, बट सब लोग अपना अपना पार्ट करते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। प्राइसेस अगर राइज कर रहे हैं तो देयर मे बी रीजंस। आप देखो पूरा वर्ल्ड इज फेसिंग दिस क्राइसिस सिचुएशन, नो, पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम हो रही है, कोरोना की वजह से इकोनॉमीज हैव बीन हेल्ड अप, कुछ नहीं हो पा रहा है, सब जगह बंद चल रहा है, अनलॉकिंग तो अभी शुरू हुई है, कुछ जगहों पे तो 6-6 महीने से जो है अनलॉक हुआ ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट प्रियांशु? यस मैम। हाँ महक, महक, Yes, ma'am. what do you have to say about this? Do you really think that government does nothing for the people, or the political parties are only for the namesake? महक, बेटा महक, Yes, ma'am. please answer my question. Ma'am, please could you repeat the question? My question is, like Priyanshu said, that government is doing nothing for the people. Do you also feel that government is doing nothing for the people? Yes, ma'am. हाँ,
What yes ma'am? Doing or not doing? No ma'am, government is not doing. How can you say this? Your parents got vaccinated? No ma'am, not till now. Why? Anybody in the family got vaccinated? Yes, No ma'am. ma'am. Ma'am, my parents. Yes, ma'am, my parents. Priyanshu, what about your parents? My parents. Okay, Priyanshu, what about your parents? Ma'am, my family is waiting for Ma'am, they are waiting for Sputnik vaccine. Okay. Otherwise, government is telling that please come and get yourself vaccinated. Are they charging any money for the vaccination that they are providing you? No, ma'am. They are not charging. No, ma'am. No, ma'am. Government is not doing anything. Government is concerned about the health of the people. They are concerned about the lives of the people. That is why they are providing free vaccinations. Right? Yes, ma'am. So how can you say Ma'am, that? but from this month and past, ma'am, only 2-3 months they have started vaccination, ma'am. This is also, ma'am, like, ma'am, from where, ma'am, last year where they were, ma'am, like, ma'am, from last year Corona has spread. See, it takes time. Vaccine was only not made, ma'am, See, at that time. the moment this crisis happened, that very time, many of the companies, many of the scientists, they were told to go for the making of the antidote or the injections so that they can be given to the people. So everything takes time. It is not that student right? Right? Yes, ma'am. Fine. So we cannot say that government is not doing anything. Yes, of course, there may be delays. There may be little, lacking, but then somehow they try to cover up things by providing every kind of facility to its people, right? Ma'am, but because of their delay, ma'am, so many, ma'am, lives are gone. बेटा वो बात ठीक है, पर सरकार ने ये थोड़ी कहा था कि अब आप खुले घूमते रहो, बिना मास्क के घूमो, पब्लिक में जाके कुछ भी खाओ पियो. Did they ever said that? हमेशा उन्होंने तो फिर people were so careless, nobody was bothered. I could see people, crowding near the ठेलास, going for. Ma'am, nowadays also, ma'am. तो फिर वही चीज है ना, ये चीज तो गलत है ना. बोलो ऑफिस में फोन करके बात करेंगे. Ma'am, every time when lockdown gets over, ma'am, everyone thinks Corona is also over. Ma'am, they went out, ma'am. Exactly, and this is not done. See, we cannot blame for our negligence. We cannot put our negligence on the government. Because government has to reopen. Reason being, many of the people are not earning their livelihood. They are facing problem. There are, crises in the families. So just to cope up with that, government has said for the unlocking, but then government never said that you please move out of the houses, be completely free, be relaxed, don't wear your mask, eat openly. So these things government is not suggesting. Government has only unlocked, but there are certain conditions that have been imposed, right? Yes, ma'am. Right, class? Yes, ma'am. ठीक है, हम मानते हैं कि सरकार, हम मानते हैं कि सरकार के काम में डिले होता है, बट हम हर चीज के लिए हम ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं ना सरकार को. ठीक है. फिर दूसरा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा, जो भी इंसान है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा. कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ हम देश के लिए भी काम करेंगे. वो ये तो कह देंगे कि हाँ हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर हम कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो जब कंट्री के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो कैसे कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, कैसे लोगों को जो भी फैसिलिटीज चाहिए विच जनरली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वो कैसे मिलेंगी. ठीक है. फिर दूसरा, कोई भी ऐसी कोई एजेंसी नहीं होगी जो कि इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं. जैसे अमूमन क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या इश्यूज होते हैं, दे आर डिस्कस्ड विद द गवर्नमेंट. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी, तो कौन तो इन इश्यूज को, इन मुद्दों को उठाएगा और कौन इनको रिजॉल्व करेगा. कोई भी ऐसा